Honorable Speaker, sir, first of all, I am thankful to my floor leader, Ali Janab Akbaruddin Owaisi Sahab, who has given me this opportunity to speak on this demand, sir. Irrigation and command area development, road and buildings, revenue registration and relief, animal husbandry and fisheries, information and public relations, sir. Sir, as far as irrigation and command area development concerns, sir, as many as 73 projects have been taken up in the state till date, sir, including 34 major and 39 medium projects, sir. Of this big number, 42 projects, 10 mega and 32 medium have been completed, and 31 projects, 34 large and 7 medium projects are currently under construction, sir. The budgetary allocation for the irrigation demand is 22,160 crores, sir, in the current budget, and the government has committed to complete 6 irrigation projects which are in final stages of construction in the current year, sir, and another 12 projects in the next year, sir. Both Congress and BRS members are engaged in war of words on these issues, and I don't want to be add to controversies now, sir. Sir, one thing I want to tell you, sir, जो इरिगेशन की बात हो रही, सर, और हैदराबाद के उस्मान सागर, हुसैन सागर है साहब, गंडीपेट और हिमायत सागर, सर, यहाँ पर जो पहले पानी आता था साहब, तो कैशमेंट एरिया से पानी आता था, वह आहिस्ता आहिस्ता होते हुए कैशमेंट एरिया ख़त्म होते जा रहा है, तकरीबन ख़त्म हो चुका, सर, क्योंकि वहाँ पर पहले तो विखाराबाद पर डैम बना के पानी रोक दिया गया, फिर बाद में वाटर लिफ्टिंग के प्रोजेक्ट्स बनाए, सर, और बिल्डिंग्स वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है सब, और जो रिंग रोड जा रहे हैं उसी के पास से जा रहे हैं, सर, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी जो आता था इन तालाबों में, वो पानी अब नहीं आ रहा है, सर. तो इसके ऊपर हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है साहब, क्योंकि ये दो जो डैम्स है, ये जो तालाब है साहब, निज़ाम ने बनाए थे. उस वक्त हैदराबाद की आबादी 4 लाख थी, उस आबादी के लिए बनाए थे, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की आवाम को पानी वहाँ से सर्व होता है, सर. और ये बात मशहूर है साहब, एक लोग कहते हैं कि हैदराबाद जब आता था कोई भी आज वहाँ से, तो मियाँ तुम्हारे गंडीपेट का पानी लग गया उनमें, ये पानी पीने के बाद. और आप जो गोदावरी से शहर को पानी लाना चाह रहे थे, वो भी अभी तक नहीं हुआ, सर, वो भी आपको लाना चाहिए. तो ये आपको तवज्जो दिला रहा हूँ साहब, इन चीज़ों पर आप तवज्जो दीजिए, और इन चीज़ों को वहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं कैशमेंट एरियाज में, उसको रोकिए साहब. अब दूसरा था रोड एंड बिल्डिंग्स. द रीजनल रिंग रोड, सर, envisages 2 national highways, one on the northern side and the other on the southern side of the total length 348 kilometers and an outlay of rupees 26,502 crores are already allotted, sir. The north road runs from Sangareddy, Tupran, Gajwal to Chotupal, sir, and the southern road runs from Chotupal, Shadnagar, Sangareddy, and it will be a 4-lane highway initially, sir. The state has to bear 50% of the land acquisition cost, and rupees 1,525 crores has been allotted for the purpose of the current year's budget, sir. I would like the government to announce the time frame for the taking up these crucial projects with central assistance, sir. और एक बात आपको इसमें कहना चाह रहा हूँ साहब, जो नेशनल हाईवेज जो हमारे सिटी में आ गए हैं साहब, वो नेशनल हाईवेज के ऊपर कोई तवज्जो नहीं जाती है, उसका कोई रिपेयर्स नहीं होता, क्योंकि उसको GHMC नहीं बना सकता साहब. तो इसके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए साहब, क्योंकि वहाँ पर कई पॉट होल्स आ जा रहे हैं साहब, कहीं पर रोड के रिपेयर्स की ज़रूरत है. काफ़ी जो जैसा नेशनल हाईवे नंबर 9 है सर,
ये जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है, मदीना, पेटलापुर, सिटी कॉलेज, हाई कोर्ट, पुराना पुल, बहादुरपुरा, यहाँ से जाती है साहब। अब एक रोड वहां से आती है जिमखाना से जो सिटी में आती, अब इसको जीएचएमसी टेकअप नहीं करता साहब। तो इसके लिए भी हमको करना चाहिए साहब, या तो इसको जीएचएमसी के हवाले कर दे ताकि इसका रिपेयर बराबर हो सके साहब, जिसकी वजह से पब्लिक को तकलीफ हो रही है साहब। Construction of camp offices, sir. Construction of camp office cum residence complexes has been taken up in 104 assembly constituencies across the state, and almost all these works are completed, sir. However, the works of this camp office cum residence complexes are not taken up in the 15 assembly constituencies in Hyderabad district. I would like to say that these camp offices for the city ML is also necessary, sir. सर यहाँ पर ये सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है साहब? अब आपके पास 119 MLAs है, आप 104 कैंप ऑफिस बना रहे हैं साहब, और यहाँ पे शहर में नहीं बना रहे। शहर में भी उसकी ज़रूरत है साहब। अगर आपको जगह नहीं है तो हम उसके लिए जगह प्रोवाइड करेंगे साहब, फराम करेंगे। आप वो हमारे 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज में सिटी के बनाइए साहब कैंप ऑफिसेस। Sir, revenue, registration and relief, sir. The state budget had allocated rupees 1,161.8 crore for the demand, comprising 4 major departments, sir. Chief Commissioner of Land Acquisition, Registration and Stamp Department, sir. Commissioner of Survey Settlement, Land Records and Revenue, sir. Disaster and Management Department, sir. The Registration and Stamp Department has collected revenue of rupees 14,291 crore in 2022 to 2023, sir, and 14,588 crores in 23 and 24, sir, in the year 23 and 24. And the legal target and the target for the current financial year, sir, is rupees 18,299 crore, sir. इसके लिए सर आप ये बना रहे हैं तो आपके सामने एक बात ये रखना चाह रहा हूं साहब, आपको इसमें जैसा कि आप यहां पर रेगुलराइजेशन के लिए दो थे साहब, जीएस नंबर 58 एंड 59 उसको रोक दिया गया साहब, उस पर आप रेगुलराइज करिए साहब, इसमें और भी आमदनी बढ़ती है साहब। बार बार आपको कहा, कहने के बावजूद अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इससे पहले की असेंबली में भी ये बात उठाए थे साहब। 58 एंड 59 जो जियोज है उसको रेगुलराइज करिए साहब। और एक जीओएमएस नंबर 118 सर, फर्स्ट लाइन सर के मिलिट्री के जो क्वार्टर्स है साहब, उनको जो दिए गए थे निजाम की जानिब से, उसको आप रेगुलराइज नहीं कर रहे साहब, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी इनकी ऑलरेडी उनको बोल दिए थे पूरा हो गया, रेगुलराइज करेंगे, जियो भी निकला साहब 118। ये जियो निकलने के बावजूद आखिर क्या बात है समझ में नहीं आ रहा साहब, इसको नहीं किए रहे साहब। और एक था साहब जीओएमएस नंबर 117 रेगुलराइजेशन का, और जीओएमएस नंबर 816 फ्री होल्ड लैंड्स का साहब, जो मारटपल्ली में भी कई लोग हैं, ये जियो निकले साहब, मारटपल्ली और कई जगहों पर है, इनके भी घरों को रेगुलराइज नहीं करे साहब। वो लोग आपको जियो देने के बाद बार बार आपके ऑफिस के चक्रा मारते साहब, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीसीएलए के ऑफिस को जाते आते, कभी कलेक्टर ऑफिस जाते, बोलते अभी वहां पे है, कोई कहते सीएम साहब करना, इससे पहले बोले सीएम साहब करना, कोई बोलते मिनिस्टर साहब करे, कोई बोले कलेक्टर साहब के पास है, कोई बोलते सीसीएलए के पास रुका हुआ है। ये लोग कितने दिन से फिर रहे साहब, आप इसमें रेवेन्यू हमारे को आता, आप रेगुलराइज करिए। जो गरीब लोग हैं साहब, जिसको ऑलरेडी दिए हुए घर दिए हुए हैं, जिसके लिए इससे पहले की गवर्नमेंट भी जियो निकाली साहब, सालारे मिल्लत उस वक्त इसके लिए कहकर जियो निकलवाए थे साहब, जो आज तक नहीं हुआ, जिसके ऊपर आली जनाब हमारे सदर मोहतरम हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यहाँ पर इससे पहले नुमाइंदगी कई मरतबा करे सीएम्स के पास, आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी यहाँ पर आवाज उठाए, असेंबली में कई मरतबा नुमाइंदगी करे, आपसे कहा, हमेशा जवाब मिला ठीक है कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। कम से कम अब तो करिए साहब, कम से कम अब तो ये काम करिए। और एक बात ये कहना चाह रहा हूं साहब, ये मैं हमारे जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं साहब, मैं समझता हूं कि ऐवान में जितने यहां पर बैठे हैं, कभी ना कभी तो आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस को गए होंगे साहब,
आज किस तरह से रजिस्ट्रेशन ऑफिस की हालत है साहब, आप देखिए जाकर आजमपुरे का ऑफिस देखिए, जगह इतनी इतनी कोई वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है साहब। वहां पर लोग आते हैं, लाखों रुपए वहां से आ रहा है, लाखों करोड़ रुपए की आमदनी वहां से हो रही साहब। बहादुरपुरे का ऑफिस है, काली खबर के बाद चार मीनार का ऑफिस है, हत्ता के बंजारा हिल्स का जो ऑफिस है हिरागड्डे में साहब, ये सारे किराए के बिल्डिंग से आप देखिए जाकर।